नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। राष्ट्रपति भवन में रूसी सरबराह पुतिन का वालियाना इस्तकबाल। मुर्मू और मोदी ने किया खैर मकदम। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन, पहलगाम हमला, जौहरी हथियार और ई वीज़ा पर भी बातचीत। मोदी ने कहा रूस चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर होंगे। इंडिगो की सैकड़ों परवाजें मनसूख, मुसाफिरीन परेशान, बच्चों समेत कई खानदान घंटों एयरपोर्ट्स पर महसूर। बहरान के बावजूद टिकटें जारी करने पर कंपनी को शदीद तनकीद का सामना। पार्लियामेंट में इंडिगो परवाजों की मनसूखी पर हंगामा, हुकूमत से जवाब तलब। DGCA का फौरी कदम, जारादारी मॉडल बहरान का असल सबब। राहुल गांधी का रिमार्क। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ असासों की इंदिराज की मुद्दत खत्म। मरकजी हुकूमत का 3 माह की मोहलत देने का ऐलान। दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे के 30 बरस मुकम्मल। शाहरुख खान और काजोल ने राज सिमरन के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। नई नीति सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, आज उनका राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और मिस्टर पुतिन ने अपने अपने ममालिक के मोअज़्ज़िज़ीन से एक दूसरे का तारुफ करवाया। मिस्टर पुतिन ने गार्ड ऑफ ऑनर का भी मुआयना किया। याद रहे कि पुतिन जुमेरात की शाम नई दिल्ली पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म मोदी खुद उनका इस्तकबाल करने हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। मोदी ने एयरपोर्ट पर पुतिन को गीता का तोहफा भी पेश किया। इससे कबल पुतिन ने राजघाट का दौरा किया और महात्मा गांधी को गुलाए अक़ीदत नज़र किए। इन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और बापू से इज़हार तशक्कुर किया। इन्होंने राजघाट पर रखे गए एक यादगार पर दस्तखत भी किए। पुतिन हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। क़ब्ल अज़ीं राष्ट्रपति भवन में उनका बाकायदा इस्तकबाल किया गया और इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुतिन का आज शाम 7 बजे हिंदुस्तान से रवाना होने का प्रोग्राम है। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मोदी और पुतिन ने हैदराबाद हाउस में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर नायाब मादनियात, जौहरी टेक्नोलॉजी और ई वीज़ा, पहलगाम हमला और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। Distinguished Prime Minister, dear friend, ladies and gentlemen, first of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. The negotiations that we've just had with the Indian colleagues, and as well as our talk yesterday with distinguished Mr. Modi in the form of Taylor said at his residence, the dinner was great. I would like to thank you for this sign of attention. These talks were very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. I would like to point out that we and Prime Minister Modi have established close working dialogue. In September this year we met during the SEO summit in Tianjin. We are regularly having telephone calls. We are personally overseeing some aspects of the development of Russian-Indian cooperation, all the strategic avenues, and also we are monitoring the course of the implementation of key bilateral projects. And today, with the participation of our delegations, we have meticulously and substantively reviewed the whole range of relevant questions of the Russian-Indian multifaceted interaction. We exchanged our opinions on the relevant global and regional subjects. In the joint statement that we've adopted with Mr. Modi, we've delineated the priority objectives on the further reinforcements of our ties in the politics and security, economy, trade, in humanitarian and cultural spheres. As you saw for yourself, we have signed an impressive package of intergovernmental, interagency and corporate agreements. Many of those agreements are intended to broaden the economic cooperation between Russia and India. And this is entirely natural
due to the fact that our countries are important partners of one another in trade, investment and technologies. Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around $64 billion. Currently, we are forecasting that the results of this year will remain at the same impressive level. At the same time, as I perceive it, we are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. And to reach this important goal, we have harmonized the program of development of Russian-Indian economic cooperation until 2030. This comprehensive document gives us a concrete set of objectives. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तान और रूस के दरमियान मजबूत और बढ़ते हुए ताउन की तस्दीक करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दोनों मालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने की ज़रूरत है। मोदी ने आज जुमे को सालाना हिंद-रूस सरबराह समिट के आगाज़ में अपने खिताब में यूक्रेन में जारी तनाज़े पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ पर जोर देते हुए कहा, हिंदुस्तान अमन के साथ है और दुनिया को अमन की तरफ लौटना चाहिए। मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का 2 रोज़ा हिंदुस्तानी दौरे के दरमियान यहाँ इस्तकबाल करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से जारी और वक्त की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती पर जोर दिया। और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरी चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा बड़ा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुल्क भर में इंडिगो एयरलाइंस की परवाज़ों की मनसूखी और तवील ताख़ीर ने हज़ारों मुसाफिरों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जुमे को ऑपरेशनल दिक्कतों के सबब एयरलाइन ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से अपनी तमाम परवाज़ें निसफ शब तक मनसूख करने का ऐलान किया, जिसके बाद दीगर शहरों में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मंगल से अब तक इंडिगो की 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि कई दीगर एयरलाइंस की परवाज़ें भी ताख़ीर से चल रही हैं।
मेरा फ़्लाइट है 3 बजे का फ़्लाइट है, लेकिन कल मेरा परसों कनेक्टिंग फ़्लाइट था, तो कल फ़्लाइट कैंसिल हो गया। अभी कैंसिल होके मेरे को एक दिन उधर जिद्दा में स्टैंड करना पड़ा। फिर अभी इधर आया, उन लोग अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। हमारा पास बुजुर्ग आदमी है, हमारा ग्रुप में 25 आदमी है, लेकिन किसी को अंदर नहीं जा रहा है। तब बुजुर्ग भी है, व्हील चेयर भी नहीं अलाउड कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पास व्हील चेयर है टिकट में, लेकिन व्हील चेयर अलाउड नहीं कर रहा है हमारे लिए। अभी एक स्टाफ ने उनका खुद का कुर्सी में बिठाया काउंटर पे, लेकिन अभी सुन रहा हूँ हमारा फ्लाइट फिर डिले हो गया। इसके वजह क्या मालूम नहीं है कि हमारा फूड का क्या है, एकोमोडेशन का क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कब तक होगा, क्या होगा। हमारा जाना है सिलचर लास्ट डेस्टिनेशन, तो कब होगा क्या होगा पता नहीं। इंडिगो का कोई स्टाफ कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वो पूछ रहा है, बोल रहा है नहीं होगा होगा। सिक्योरिटी और स्टाफ भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो अब अभी हम लोग क्या करें, हमारा पास 7 लेडीज़ भी है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है। तो इसका अभी क्या सोल्यूशन है हमें कुछ पता नहीं। कब तक पहुंचूंगा, आज होगा या नहीं होगा, कोई रिस्पांस नहीं है किसी का। लेकिन वो हमारा खाना भी किधर है, रहने का किधर है, अभी बाथरूम भी करना मुश्किल हो रहा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अहमदाबाद एयरपोर्ट में हमारा फर्स्ट टाइम है, तो अभी आगे क्या करना है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। कहाँ का फ्लाइट था आपका? जिद्दा टू सिलचर। We were not informed that they are cancelling the flight. They should have ideally informed us either via email or by message. There was no information. Morning since 5 o'clock we are awake and we are waiting here since 2 hours. There's no information. We are standing in the queue for hours, and now they are saying that they will not even provide the stay. Tomorrow they are providing us the flight. We have a wedding to attend, so it's a mess, total mess. There's no information, there's nobody to talk also. In queue you're standing for long hours, so it's a total mess. We are really disappointed with Indigo. अहमदाबाद एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा बेचैनी देखने में आई, जहां मुसाफिर 10 से 12 घंटे तक एयरपोर्ट के अंदर बैठे रहे। मुतादिद परवाज़ें अचानक मनसूख हुईं, जबकि कई घंटों की ताख़ीर के बावजूद वाज़ेह मालूमात फ़राहम नहीं की गईं। मुसाफिरों ने कहा कि अगर कंपनी को मसले का इल्म था तो टिकट्स की फ़रोख्त क्यों की जा रखी है। काफ़ी परेशानी हो गई, और फिर उसके बाद हमने 1:20 वाली फ्लाइट अभी ली है, तो देखते हैं वो उठती है या नहीं। तो काफ़ी परेशानी हुई है, और पूरा हमारा क्योंकि हम एमबे के एएलएस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो काफ़ी आज हमने एमबे ऑफिस में केक कटिंग सेरेमनी वगैरह रखी हुई थी, वो सारी फिर कैंसिल करनी पड़ी, और सारा पूरा मसला खराब हो गया। टीम को भी काफी लोग आए हुए हैं। हाँ, ये सारी टीम है हमारी, हमें सीएफ करने आई है यहाँ पे। तो अभी आपको टिकट मिल गई है दूसरी? हाँ, दूसरी टिकट हमें मिलेगी है, और सेम प्राइस पे मिल गई है। हाँ, पर थोड़ा सा ये हो गया कि टाइम सारा खराब हो गया, क्योंकि 4 बजे फ्लाइट थी, 1:20 पे कर दी, वो भी हमने मैसेज देख लिया तब जाके हुआ। हम अभी जम्मू से दिल्ली होके बेंगलुरु जाने का प्लान था। सुबह 10:15 में फ्लाइट था, तो वो कैंसिल डिले होता रहा था। तो सुबह सुबह मैसेज मिल रहा था कि थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन वो मैसेज बैक टू बैक आ रहा था। तो उसके बाद फाइनल स्टेडी स्टेट में पहुंचा कि 12:35 में वो फाइनल है। तो उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिला, तो हम लोगों को लगा कि यही है फाइनल, तो आ जाए। यहाँ आने के बाद पता चला कि वो 3:20 हो गया है, और मेरा जो दिल्ली से बेंगलुरु का कनेक्शन है वो तो छूट गया। उसका ऑल्टरनेट क्या है वो भी पता नहीं अभी, और ये 3:20 वाला भी फाइनल है या नहीं वो भी पता नहीं। तो इसी इंडिगो में ही होना ये पता नहीं लग रहा है। मेरा इंडिगो का है ये। मुल्क में इंडिगो की सैकड़ों परवाज़ों की मनसूखी से हवाई सफ़र मुतासिर होने और मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को भारी परेशानी का मामला जुमे को राज्यसभा में भी गूंज उठा। अविशन अराकिन ने मामला उठाते हुए कहा कि एयरलाइंस की बार बार की मनसूखियाँ लाखों मुसाफिरों के लिए दुश्वारी और अफरा तफरी का बाज़ बन रही हैं, और हुकूमत को फौरी तौर पर इस मसले पर वजाहत पेश करनी चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी ने कहा कि इंडिगो की 500 से ज़्यादा परवाज़ें जुमेरात को मनसूख हुई, जबकि इससे पहले के दिन भी सूरत-ए-हाल यही रही। इन्होंने कहा कि इस कदर बड़ी तादाद में मनसूखियाँ मोनोपोली के नतीजे में पैदा हुई हैं और हुकूमत को एयरलाइंस से सख्ती से बाज़पुर्स करनी चाहिए। तिवारी ने वज़ीर से पूछा कि बहरान कब तक ख़त्म होगा, क्योंकि कई अराकीन पार्लियामेंट को भी अपने इलाकों की तरफ सफ़र करना होता है। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने ऐवान को बताया कि इन्होंने इस मामले पर शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू से बात की है और जल्द ही तफसीली मालूमात पार्लियामेंट को फराहम की जाएंगी। इन्होंने इसे अवामी अहमियत का संगीन मामला करार दिया।
उम्मीद पोर्टल पर वक्फ असासों के इंदिराज की 6 माह की मुकर्रर मुद्दत जुम्मे को ख़त्म हो रही है, लेकिन मुल्क भर में लाखों असासे अब भी रिकॉर्ड से बाहर हैं। इस सूरत में मरकज़ ने वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 माह की मोहलत देने का फैसला किया है, ताकि अफराद जिन्होंने कोशिश तो की मगर वजूहात के बाद इंदिराज मुकम्मल ना कर सके, इन्होंने फौरी दबाव का सामना ना करना पड़े। अलग सुबह जारी बयान में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने वाज़ेह किया कि आज इंदिराज की आखिरी तारीख ज़रूर है, मगर हम जानते हैं कि पूरे मुल्क में लाखों जायदादें अब भी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकी। मुतादिद अरकान पार्लियामेंट, समाजी रहनुमाओं और वक्फ नुमाइंदों ने मोहलत बढ़ाने की मांग रखी है। इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की मुद्दत मुकर्रर करते हुए इसे बराह रास्त बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए हुकूमत तारीख में तोसी नहीं कर सकती। ताहम इन्होंने यकीन दहानी कराई कि जो लोग इंदिराज की कोशिश करते रहे उनके खिलाफ आइंदा 3 माह तक कोई सख्ती, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, अभी तक आज शाम तक कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अभी तक 1,51,000 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कुछ स्टेट है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कर्नाटका है। कर्नाटका में 50,800 वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है और पंजाब भी अच्छा किया है, जम्मू कश्मीर का भी अच्छा है और कुछ स्टेट्स का और अच्छा हुआ है। कई बड़े स्टेट है जिसमें रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाया है। मुझे बताया गया कि कुछ जगह में उम्मीद पोर्टल स्लो चल रहा था या कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स का कमी होगी, लेकिन क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावालीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावालिस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी की है, डायरेक्शन दिया है, वो बहुत साफ है कि 6 महीने का एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल आपका तारीख को। आज़म खां के बेटे और साबिक़ रुकन असम्बली अब्दुल्ला आज़म के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। वो 2 पैन कार्ड मामले में पहले ही 7 साल कैद की सज़ा काट रहे हैं। अब उन्हें 2 पासपोर्ट रखने के लिए भी अदालत ने 7 साल कबल कैद की सज़ा सुनाई। इसके अलावा इन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। आज समाअत के दौरान अब्दुल्ला आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे। काबिल ज़िक्र कि अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ 2 पासपोर्ट का मामला रुकन असम्बली आकाश सक्सेना ने सिविल लाइन्स थाने में 2019 में दर्ज कराया था। उनका इल्ज़ाम था कि अब्दुल्ला आज़म के पास 2 पासपोर्ट हैं, उनमें से एक पासपोर्ट का इस्तेमाल वो बैरून मुल्क सफ़र में भी कर चुके हैं। यशराज फिल्म्स की तारीखी ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ के 30 बरस मुकम्मल होने पर शाहरुख खान और काजोल ने लंदन के लीस्टर स्क्वायर में राज सिमरन के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। ये पहली बार है कि किसी हिंदुस्तानी फिल्म को लीस्टर स्क्वायर में मुजस्समे की सूरत में एजाज़ दिया गया है। कांसे का मुजस्समा फिल्म के मरकज़ी किरदार राज और सिमरन को बावक़ार अंदाज में पेश करता है और गुज़िश्ता 30 वर्षों में जनूबी एशियाई कम्युनिटीज़ पर फिल्म की मकबूलियत को ज़ाहिर करता है। लीस्टर स्क्वायर की मशहूर सेंस इन दी स्क्वायर ट्रायल में शामिल होने वाले इस मुजस्समे का इफ्तिताह दोनों बॉलीवुड स्टार यशराज फिल्म्स के CEO अक्षय विधानी और हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस के चीफ एग्जीक्यूटिव
रोज़ मोर्गन की मौजूदगी में किया गया। ये तकरीब हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान गहरे सकाफती रिश्तों का भी जश्न थी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। राष्ट्रपति भवन में रूसी सरबराह पुतिन का वालियाना इस्तकबाल। मुर्मू और मोदी ने किया खैर मकदम। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन, पहलगाम हमला, जौहरी हथियार और ई वीज़ा पर भी बातचीत। मोदी ने कहा रूस चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर होंगे। इंडिगो की सैकड़ों परवाजें मंसूख, मुसाफिरीन परेशान, बच्चों समेत कई खानदान घंटों एयरपोर्ट्स पर महसूर। बहरान के बावजूद टिकटें जारी करने पर कंपनी को शदीद तनकीद का सामना। पार्लियामेंट में इंडिगो परवाजों की मंसूखी पर हंगामा, हुकूमत से जवाब तलब। DGCA का फौरी कदम, जारादारी मॉडल बहरान का असल सबब। राहुल गांधी का रिमार्क। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ असासों की इंदिरायत की मुद्दत खत्म। मरकजी हुकूमत का 3 माह की मोहलत देने का ऐलान। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 30 बरस मुकम्मल। शाहरुख खान और काजोल ने राज सिमरन के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।